Good morning students, welcome to the class. I am Rajni, your science teacher in DAV Police Public School, Kathal. Today we will start with a new chapter, chapter number 5, heat. So you are familiar with the word heat. You have already studied about the heat as a form of energy. Heat is a source of energy. It is a form of energy we use in our daily life. We use heat in cooking our food. Plant use sunlight as a heat to make food in the form of photosynthesis. So this heat is very familiar to us. Heat is a form of energy which can cause hotness of the body. Heat can also be transformed into the other form of energy. When the body gain heat, it become hot. Water is hot when it kept on the burner. But if a body lose heat, it become cold. How does heat energy get transferred into the other form of energy? You have already studied in the 6th class that one form of energy transfer into the other form of energy only, and the process or the law to transfer one form of energy into the other form of energy is called law of conservation of energy. In thermal power station, heat energy transfer into the electrical energy. In nuclear power plant, the nuclear energy transfer into the heat energy. On rubbing the palm against each other, palm become hot and the mechanical energy is converted into heat energy. In electric bulbs, the electric energy get transferred into the heat energy of the filament, which is then converted into light energy. You have already studied in the class 6th. During working of the heater and geyser, the electrical energy get transferred into the heat energy. In steam engine, the heat energy is transferred into the other form of energy. So in this way, you have already studied the heat transfer from hot body to cold body. Always the transfer of heat take place from hot body to cold body. Here you are also seeing the warmer object transfer heat to the cold object. The heat is always transferred from hot body to a cold body. So the degree of the hotness of the body is called temperature. Temperature we use to measure the degree of hotness of the body. When an object is heated, it becomes hot, along with the object also expand. This is very important here. When an object is heated, it becomes hot and the object expand, and this phenomena is known as thermal expansion. Thermal expansion. Expansion means to expand and thermal means on heating. On heating, objects expand. The process is called thermal expansion. कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म करने पर एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे. आप प्लास्टिक को गर्म करते हो, वो फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. आपने बिजली की तारें देखी होंगी. बिजली की तारें जो हैं वो गर्मियों में लटक जाती हैं बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन के कारण गर्मी में वो एक्सपेंड हो जाती हैं और तारें जो हैं वो नीचे की ओर लटक जाती हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. द ऑब्जेक्ट हीट and on becoming hot, the object expand. This process is called thermal expansion. जो ये हमारा प्रोसेस है थर्मल एक्सपेंशन, इसके लिए हमने बहुत सारे अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें भी यूज़ की हुई हैं. जैसे कि आप प्लेटफॉर्म देखते हो, प्लेटफॉर्म की जो पटरी के बीच में जो गैप होता है, वो गैप देने का रीज़न यही होता है कि लोहा भी गर्मी में एक्सपेंड हो जाता है. आयरन भी जो है वो गर्मी में एक्सपेंड हो जाता है और एक्सपेंड होने के कारण वो फैल जाता है. अगर फैल जाएगा तो बीच में से जो रेल का पहिया होगा वो नहीं निकल पाएगा, तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म में भी गैप दिया जाता है ताकि वो एक्सपेंड हो, उसके बाद भी उस पहियों के लिए गैप जो है वो मेंटेन रहे. एंड कूलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन. जो ऑब्जेक्ट है वो कूल होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं. जो हमने ये बात की है थर्मल एक्सपेंशन की, ये एक जगह पे
एक जगह पे जाके ये रिवर्स हो जाती है वाटर के केस में। वाटर के केस में जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड नहीं होता। वाटर जो है वो ऑन कूलिंग एक्सपेंड होता है, ऑन हीटिंग एक्सपेंड नहीं होता। कूलर एरियाज़ में, जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, कूलर एरियाज़ में जो वाटर पाइप्स होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं इन विंटर सीजन। द रीज़न इज़ दैट वाटर एक्सपेंड ऑन कूलिंग। वाटर जो है वो एक्सपेंड होता है कूलिंग पे और वाटर के जो पाइप्स हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये जो एक्सपेंशन का केस है ये हमारा वाटर के ऊपर रिवर्स हो जाता है। वाटर में वो कूलिंग पे एक्सपेंड होता है, इसीलिए हमारे वाटर पाइप्स जो हैं वो विंटर सीजन में ब्रस्ट हो जाते हैं इन कूलर एरियाज। सो वी विल डिस्कस दिस अगेन, द इफेक्ट ऑफ हीट्स नाउ। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जैसे हमने एक ये यहाँ पे भी पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन, इसी तरह से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है ऑन हीटिंग से। जैसे कि सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। द ईजी एग्जाम्पल इज़ दैट आप आइस को गर्म करोगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और वाटर को आप गर्म करोगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज अ इफेक्ट ऑफ हीट। ब्रिंग केमिकल चेंज इन सब्सटेंस, फूड गेटिंग कुक्ड व्हेन हीटेड। केमिकल चेंज है, आपको पता है, आपने केमिकल चेंज पढ़ रखे हैं। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो खाना भी जब आप बनाते हो, जैसे कि आटे से चपाती बनती है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ हीटिंग। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंगूज़ है वो समर सीजन में, क्योंकि उसके लिए अप्रोप्रिएट समर सीजन है, वो समर सीजन में ही ग्रो करता है और बैक्टीरियाज जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं। तो दीज आर आल्सो द इफेक्ट ऑफ हीट। बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस अकर ड्यू टू हीट। वुड, कोल, पेट्रोल कैच फायर ऑन बर्निंग एंड द प्रोसेस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, hence are used as fuel for domestic and industrial purpose.